everyone, welcome or welcome back. I hope you all are doing well and welcome back to yet another empty haul video. Now I'm gonna give you the mini reviews, or I'm gonna tell you whether I'm gonna be recommending them or not, or whether I'm gonna be repurchasing them or not. So if you're interested, then please keep on watching. Alright, so let's start off with the face wash first. I have here 3 empties. One is the Himalaya Neem Purifying Face Wash. You guys know I love this one and it was in my होली ग्रेल वीडियो एज वेल, एंड ये आपको मोस्टली हर एम्प्टी वीडियो में दिख जाएगा. बट अभी आई हैव अ लॉट ऑफ फेस वॉश. मैंने बहुत सारे इस मंथ बहुत सारे फेस वॉश मैंने नए नए लिए हैं. सो आगे आपको और नए नए फेस वॉश के रिव्यूज़ देखने को मिलेंगे. बट येस, दिस वन वॉज माई होली ग्रेल. इट इज़ माई होली ग्रेल प्रोडक्ट, एंड जब कुछ और समझ में नहीं आता है तो आई गेट बैक टू दिस वन. आई लव दिस वन. परफेक्ट फॉर ऑल स्किन टाइप, स्पेशली if you are a oily and acne prone skin, you should check this one out. Second, we have this Simple Ka Purifying Facial Wash. This one is from their daily skin detox वाला line. जब मैंने इसका रिव्यू किया था, मैंने आपको बताया था कि I hate it because इसके अंदर स्क्रब पार्टिकल्स हैं, and if you want that scrub वाला feel and if your skin can tolerate physical exfoliation or physical exertion, you can go for this one. But for us, like of course मैंने तो इसको फिनिश नहीं किया है, मेरे हस्बैंड ने बेचारों ने यूज़ किया है इसको. सो ही यूज दिस वन इन द मॉर्निंग टाइम, और सुबह के लिए इट्स फाइन. लाइक जेल टाइप कंसिस्टेंसी है तो मॉर्निंग में ठीक है. बट अगेन यू नो you don't want that physical exfoliation in the morning when you don't need even a harsh face wash, and this has scrub particles in it. So anyway, we could have managed to finish this one, but we won't be recommending this one to anyone. If your skin can tolerate physical exfoliation, you can use this one like twice or thrice in a week, not more than that. And we really don't like it, so I won't be recommending this one to anyone. But if you want, you can. The third one we have is this from Wow. It's their green tea foaming face wash. Now if you have seen my best and worst वाला Wow वाला video, then आपको पता है कि मैंने उसमें सारे इन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको क्या बताया है. If you have missed it, I'm gonna give the link here. उसमें मैंने आपको अपडेटेड व्यूज़ दिए हैं मैंने अपने, कि अब मैं क्या सोचती हूँ इन प्रोडक्ट्स के बारे में. But overall they are fine, but over pricey. If you get them at 70% off, then it's fine. 50% off में मिलते हैं, then you can go for them. Because see, I'm not gonna lie here, these products has not caused me any irritation. कोई मुझे irritation नहीं हुई है इन products को use करने के बाद, और they have suited well on my skin. But हाँ, एक magic किया है face पे, वो that I can't say कि they have done something, because they are very basic stuff. and ये face wash भी बहुत ही basic है. Again, it has this pump and brush. तो अगर आप फिजिकल एक्सफोलिएशन अगर आपका स्किन टॉलरेट कर लेता है, then you can use them like once or twice a week, but not more than that, because it is a kind of exfoliation. So if you're already doing chemical exfoliation, then I won't be suggest this one. But if you're doing physical exfoliation, then once or twice or thrice a week you can use this brush वाला applicator. Otherwise आप यहाँ से foam लेके then आप इसको use कर सकते हो. So इनके face wash are fine. Okay, next comes the moisturizers, and I have a lot of them. इसमें से कुछ थे जो मैंने अपने हस्बैंड को दिए हैं, और कुछ थे जो मेरी मम्मी को दिए थे. तो मैं इनके छोटे छोटे मिनी रिव्यूज़ फटाफट से आपको दे देती हूँ. सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस डव का डेली डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम विद नो ग्रीसी फील. ना ये मैंने अपनी मॉम को दिया था, एंड उन्होंने इसको फिनिश किया है. बहुत ही बेसिक सी मिनिमल तो नहीं बोल सकते, वेरी बेसिक इंग्रेडिएंट लिस्ट. मिनरल ऑयल है, पेट्रोलियम है, कोकोआ सीड बटर है, we have some glycol, some humectants, and we do have parabens and some fragrance component in this one. So if you avoid parabens and fragrance component, you can skip this one. Otherwise, this gonna be suitable for people who range between normal to oily skin, not for very dry skin. Because my मम्मा ने जब इसको यूज़ किया था, she said कि थोड़ा ऐसे ड्राई सा रहता है फेस, तो उतने अच्छे से नरिश नहीं लगता है. So that's what about it. From my side, I won't be recommending, but if you use like इस तरह के brands अगर आप use करते हो, तो you can go for this one. It's a basic
स्टफ स्किन आई हैव इज़ दिस फ्रॉम पॉन्ड्स। अब ये बहुत पहले आई थिंक लास्ट ईयर की मैंने ली थी, बट ये मैंने अभी मम्मा पिछली बार जब यहाँ आए थे तो उस टाइम पे मैंने ये मम्मी को यूज़ करने के लिए दी थी और मम्मा ने इसको फिनिश किया है। एंड जब मैंने इसका रिव्यू किया था आप लोगों को तो मैंने आपको बताया था कि जब मैंने इसको यूज़ किया था तो मुझे अपनी स्किन में ना ऐसे लगता था कि मेरी स्किन जल रही है, दैट बिकॉज कि इट्स वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड एंड इट्स बेस्ट फॉर पीपल हु आर एज्ड ओवर 40, लाइक जो 40 की एज से ऊपर हैं 40-45 उनके लिए ये प्रोडक्ट अच्छा है। बट फॉर मी जो अभी 30s में थी तो मेरे लिए ये थोड़ा सा हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला स्टफ हो गया था। बट येस जब मेरी मम्मी ने इसको यूज़ किया था लास्ट टाइम पे जब आई थी वो, तो उन्होंने इसको कंटिन्यूसली 15-20 दिन जब यूज़ किया तो उनके फेस पे मुझे एक इवननेस फील हुई थी डेफिनेटली, बिकॉज आई रिमेंबर जब मम्मी आए थे तो बहुत ही डल ऐसा डार्क सा चेहरा लग रहा था। बट जब मम्मी वापस गए थे तो एकदम से मम्मी का चेहरा खिला खिला सा और क्या बोल सकते हैं उसको, थोड़ा सा इवन टोन हो गया था, टैनिंग रिमूव हो गई थी और ब्राइटनेस फेस पे फील हुई थी। तो आई वुड से इफ़ योर मॉम इज़ लुकिंग फॉर सच प्रोडक्ट, सो दिस इज़ द प्रोडक्ट यू कैन गिव इट योर मॉम। ये 40+ की जितनी भी लेडीज़ हैं उनके लिए दिस वन इज़ रियली रियली गुड, बिकॉज आई हैव सीन रिजल्ट्स इन 15 to 20 days of use of this cream on my mom's face. So yes, you can try this one out. Next we have this Innisfree Cherry Blossom Lotion. ये मेरे husband ने finish किया है. Again it has fragrance in between, तो if you really don't mind fragrance कि हाँ जेजू चेरी ब्लॉसम से ज़्यादा फ्रेग्रेंस अगर आपको इशू नहीं कर रही है, बॉदर नहीं कर रही है, यू कैन गो फॉर दिस वन, बिकॉज प्राइस वाइज क्वांटिटी आपको 100 ml की मिलती है। वेरी जेल लाइक लोशन लाइक कंसिस्टेंसी है। इट गोना बी सुटेबल फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन पीपल, ड्राई स्किन के लिए, समर्स के लिए ठीक है, बट विंटर्स के लिए आई कांट से मच कि ये कितना दे पाएगा। बट येस ओवरऑल इट वॉज फाइन, बट यू नो फ्रेग्रेंस ज़्यादा है एज what product is claiming, so I won't be recommending this one. Next we have this Lakme 9 to 5 vitamin C plus day cream. Now ये मेरे husband ने finish की है and he kinda like it because इसका जो consistency था मैंने आपको दिखाया था, it has a very gel cream based consistency जो मेरे husband को अच्छी लगती है and it's perfect for normal to oily combination skin के लिए this one is fine, and for very dry skin I can't say much because of course it has gel kind of a consistency, gel cream based consistency है, तो extremely dry skin के लिए ये नहीं है, but rest skin types can go for this one. It's a pretty decent moisturizer. It has vitamin C के derivatives and some good stuff, and then of course that fragrance component. So again I think I don't need to tell this thing again and again. If you avoid fragrance components in your skincare, you can skip this one. Other than that, it's a plain basic moisturizer. Next we have this Aqua Oat moisturizing cream. My husband has finished this off and इसका मैंने लेटेस्ट आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर किया था। मैंने आपको बताया था कि इसमें सैरामाइड्स और ये कोलाइडल ओट मील जो ये क्लेम करते हैं वो फिनॉक्सीथिनोल के बाद है। दैट मीन्स कि 1% से नीचे हैं, पॉइंट्स में है। सो आई डोंट नो क्यों इसका इतना ज़्यादा हाइप है यूट्यूब पे, बट येस ऊपर बेसिक जो आपका ह्यूमेक्टेंट हो गया, एक्लूसिव हो गया, इमोलियंट्स हो गए, वो इसमें टॉप में हैं डले हुए। तो वैसे देखा जाए तो इट्स अ परफेक्ट मॉइस्चराइजर, बट इफ यू से दैट इट्स अ बेस्ट सेरामाइड मॉइस्चराइजर, नो इट्स नॉट अ बेस्ट सेरामाइड मॉइस्चराइजर अवेलेबल, बट इट्स अ प्लेन बेसिक मॉइस्चराइजर। अगेन नॉट फॉर वेरी ड्राई स्किन, बिकॉज जब भी मैं इसको यूज़ करती थी तो मुझे स्ट्रेच ज़रूर फील होता था। इफ़ यू आर मोर ऑन ऑयली स्किन टाइप देन इट्स गोना बी सुटेबल फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन पे भी ठीक जाएगा, बट फॉर वेरी ड्राई स्किन आई वोंट बी रिकमेंडिंग दिस वन। अदर एम्प्टी इज दिस वाओ का कोकोनट वाटर फुल क्रीम। अब ये मैंने मम्मी को दिया था, मम्मा ने यूज़ किया है इसको एंड शी लव्ड इट, लाइक शी वाज लाइक कि हाँ ये बहुत अच्छी है, ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं फेस को करती है। सो दिस वन इज़ परफेक्ट फॉर ड्राई स्किन पीपल, ओके। बट अगेन वाओ है तो वही सेम मेरे वर्ड्स रहेंगे इस प्रोडक्ट के लिए भी कि इट्स अ बेसिक मॉइस्चराइजर, बट
वेरी वेरी प्राइसी, जो मतलब इसका जो प्राइस है वो वर्थ नहीं करता है जो भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, बिकॉज इसके अंदर बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट लिस्ट है. सो अगर ये आपको 50% के ऑफ पे मिलती है देन यू कैन गो फॉर दिस वन, बट फुल प्राइस पे लेना इट्स अ स्टुपिडिटी. सो या, नेक्स्ट आर टू माई फेवरेट मॉइस्चराइजर. वन इज द mask. It's from Belief. You guys know how much I love this one. This one is First Aid Overnight Skin Regeneration Mask. ये हाफ मैंने यूज़ किया था, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने इसको फिनिश किया है अभी. आई थिंक 1 एप्लीकेशन इज लेफ्ट. इसका मेरे पास रीपरचेज पड़ा हुआ है. नाउ जिस टाइम पे मैं ड्राई स्किन पे थी, दिस इज परफेक्ट फॉर पीपल हु हैव इरिटेटेड एंड itchy and flaky skin. If you're a rosacea prone skin, this gonna be a suitable option for you because ये काम भी करता है आपके स्किन को, और जो फ्लेक्स हैं, इचीनेस है, जो अगर खुजली होती है आपको अपनी स्किन पे, रेडनेस है, तो ये उसको बहुत अच्छे से सूद आउट करने में हेल्प करता है. आई लव दिस वन, दैट्स वाई मैंने इसको रीपरचेज कर लिया था. एंड अभी वो फिनिश, अभी मैंने ओपन ही नहीं किया है वो, और अभी मैं ड्राई से मेरा बीच में जो बैरियर डैमेज हुआ था, तो नाउ आई एम मोर ऑन ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन टाइप हो गया है मेरा, तो अभी मैं इसको नहीं यूज़ कर पाई. बट अभी विंटर्स आने वाली हैं आगे, तो विंटर्स में मैं एक बार ट्राई करूँगी, अगर आई होप ये सूट कर जाए. सो या, आई लव दिस वन. इट हैज़ फ्रेग्रेंस इन दिस वन, बट I can pass that away because this product suits really really well on my skin, so that's why I love this one. Second is again my holy grail product. This one is the Cosrx Snail 92 all-in-one cream. ये I think मेरी दिस इज़ माई थर्ड टब. ये भी थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है, एज यू कैन सी, बहुत थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है, बट ऑलमोस्ट खाली हो गया ये. तो इसके बाद से भी दो टब मेरे पास और पड़े हुए हैं. सो दिस इज़ माई थर्ड टब आई थिंक. या, सो दिस इज़ माई थर्ड टब एंड यू गाइज नो हाउ मच आई लव दिस वन. सो very very beautiful moisturizer for all skin types. If you are extremely dry, add 100% squalene oil, then you're gonna be sorted. Otherwise for rest skin types it's perfect moisturizer. I know बहुत से लोगों को लगता है कि इट्स वेरी स्लाइमी, तो बहुत बड़ा गंदा सा फील आएगा, बट ऐसा नहीं है. ये इंस्टेंटली अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन पे और वाटर की तरह फील होता है आपके फेस पे. परफेक्ट मॉइस्चराइजर फॉर ऑल स्किन टाइप, स्पेशली इफ यू हैव इरिटेटेड एंड डिहाइड्रेटेड स्किन, दिस इज द वन फॉर यू. Next I have these two serums. One is this peptide complex serum from Earth Rhythm. I have enjoyed it, but as you know, this 3% Replaxium claims कि 21 days में आपको 7 year younger बनाएगा, तो ऐसा तो नहीं है. मैंने भी रिसेंटली आप लोगों के साथ बेस्ट एंड वर्स्ट अर्थ रिदम का वीडियो दिया था. इफ़ यू हैव मिस्ड इट, आई एम गोना गिव द लिंक हियर, यहाँ से चेक कर लेना. सो ओवरऑल इट वॉज अ डिसेंट प्रोडक्ट, बट येस थोड़ा सा प्राइसी मुझे ये फील हुआ. 9 कितने का है यार, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये. इट्स नॉट फॉर 1000, आई थिंक इट्स फॉर 1500 और समथिंग, और 1000 और समथिंग, जो भी ये प्राइस चेक कर लेना. तो मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि इट्स बिट प्राइसी फॉर जस्ट फॉर द पेप्टाइड. सो इंस्टेड ऑफ दिस आई वुड से कि go for Purito का Centella वाला unscented serum that has peptides, ceramides, niacinamide, Centella. So instead of this, I would say go for that, not this one. So I won't be recommending, but yes, if you want only a peptide serum, then you can go for this one. Next empty is this Chemist at Play 11 kDa hyaluronic acid plus 10% niacinamide. I have loved it, I have enjoyed it. It was perfect, and it has ceramides, but बहुत कम concentration है, which is fine. But it has this very low molecular hyaluronic acid जो deep inside आपके नीचे स्किन में जाके आपको अंदर से plumpness देता है. 10% niacinamide है, which is, you guys know, like how many times I have told about it कि how miracle this ingredient is. So I love this one. It's a very very hydrating serum, very very light consistency, बिल्कुल भी चिप फील नहीं होती जब आप इसको यूज़ करते हो. So perfect for people who have weak barrier, and if you have marks, this is gonna definitely work on your marks as well. I will be recommending this one, and I may repurchase this again. Next are some hair empties. Okay, one is this, of course, one is this वाटिका का हिना एंड आंवला वाला शैम्पू. कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है ये. यू कैन हेयर द साउंड. ओके, ये
हाइड्रेटिंग है, आई वुड से। अगर इन वन वर्ड आई हैव टू टेल देन दिस इज़ अ वेरी हाइड्रेटिंग शैम्पू फॉर पीपल इफ़ यू हैव ड्राई स्कैल्प, बट नॉट फॉर पीपल हु हैव ऑयली स्कैल्प। लाइक मुझे ये उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया बिकॉज आई हैव ऑयली स्कैल्प, सो आई नीड समथिंग जो मेरे स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करे। सो ओवरऑल इट वॉज फाइन, इट वॉज डिसेंट, बट येस आई लाइक द येलो वन, द एंटी डैंड्रफ वन मोर लाइक देन दिस वन। एंड रिसेंटली जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसका आई थिंक आई एम प्लानिंग फॉर कि मैं इन तीनों का साथ के साथ कंपैरिजन करके आपको एक वीडियो दे दूँ। तो इफ़ यू इंटरेस्टेड तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो तीनों का कंपैरिजन करके मैं एक वीडियो आपको दे दूँगी कि इनमें से कौन सा किस हेयर टाइप के लिए suitable है। So I won't be purchasing this one because this has not worked that well on my scalp. So yeah, that's one. Second is this L'Oreal Dream Length Restoring Shampoo। ये मेरे हस्बैंड ने फिनिश किया है बिकॉज जब मैंने इसका रिव्यू किया था मैंने आपको बताया था कि मेरी स्कैल्प को और ज़्यादा ऑयली बना रहा था। तो इट्स नॉट फॉर पीपल हु हैव ऑयली स्कैल्प, बट येस इफ़ यू हैव ड्राई एक्सट्रीमली ड्राई स्कैल्प देन दिस गोना बी अ परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू। एंड नेक्स्ट वी हैव दिस विश केयर का fermented rice water shampoo। I don't like it that much, like it's very basic, like बहुत ही normal सा है, कोई बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं उसको, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं है, लाइक ओके ओके सा है बट प्राइसी है। सो आई वॉन्ट बी रिकमेंडिंग दिस वन एंड आई वॉन्ट बी रिपर्चेजिंग दिस वन। नेक्स्ट हेयर प्रोडक्ट इज़ दिस मिनोइल वीसी हेयर ऑयल। ये क्योर स्किन ऐप से मैंने मंगवाया था। बेसिक है, लाइक इसमें what this has, it has almond oil, noni oil, कोकोनट ऑयल है, ब्रिगंडी ऑयल है, लाइक ये 4-5 ऑयल का इसमें मिक्सचर सा डला हुआ है। सो ओवरऑल इट्स ओके बट एकदम से एक ह्यूज डिफरेंस मुझे कि हाँ इसको यूज़ करने के बाद बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड सॉफ्ट हो गए, वो तो नहीं फील हुआ। सो इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। तो आई थिंक आई एम नॉट गना बी रिकमेंड तो कर सकती हूँ बट आई वोंट बी रिपर्चेजिंग दिस वन बिकॉज मेरा जो ऑलिव ऑयल है दैट वर्क्स वे बेटर देन एनी अदर ऑयल्स अवेलेबल इन द मार्केट। नेक्स्ट इज दिस वाव की हैंड क्रीम। ये भी मैंने मम्मी को दी थी यूज़ करने को एंड शी वाज लाइक कि इट्स फाइन। लाइक मैंने आपको बताया था जब मैंने ये हैंड क्रीम्स का रिव्यू किया था कि इतनी ज़्यादा हाइड्रेटिंग नहीं है, दे आर वेरी बेसिक, लाइक आपको नॉर्मल हाइड्रेशन के लिए चाहिए देन दे आर फाइन, बट दे आर नॉट फॉर एक्सट्रीमली ड्राई हैंड। सो आई वोंट बी रिकमेंडिंग दिस। नेक्स्ट टू आर दीज माई बॉडी रोल ऑन्स। दीज आर पर्ल एंड ब्यूटी वन। ये 2 फिनिश हो गए हैं, लास्ट टाइम आई थिंक मैं दिखाना भूल गई थी। सो आई लव देम। इफ़ यू आर पर्सन हु स्ट्रगलिंग विद दैट बैड ओडोर वाला इशू, तो दीज आर द वन विच यू शुड बी लुकिंग फॉर बिकॉज दे वर्क रियली वेल एंड ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। लाइक अगर आप मॉर्निंग में यहाँ पे अप्लाई करते हो तो शाम तक आपको स्मेल नहीं आता है, बट ऑफकोर्स अगर स्वेट आपको ज़्यादा आता है, अगर आप गर्मी में रहते हो बिना पंखे के और बिना AC के घूम रहे हो या चल रहे हो, तो आई थिंक फिर शायद ये उतना ज़्यादा मतलब आपके स्वेट को कंट्रोल नहीं करता है, पर हाँ उतना ज़्यादा बैड ओडोर आपको नहीं आएगा अगर आप ये वाले यूज़ करते हो। एंड इफ़ यू कैन रीअप्लाई देम, लाइक वंस योर अंडर आर्म्स आर ड्राई देन अगेन रीअप्लाई देम, देन आई थिंक ये आपको लंबे टाइम तक के लिए और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट दे सकते हैं। बट येस आई लव देम एंड यू गाइज नो हाउ मच आई लव देम बिकॉज ये मैंने आपको अपनी होली ग्रेल में दिखाए थे। आई लाइक द प्रोडक्ट विच आई हैव बीन यूजिंग सिंस लास्ट मोर देन 15 years, so yeah I love them. Next is again a holy grail. इसको भी पता नहीं कितने सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ। Again there is an empty. This is the Himalayan Purifying Neem Pack. Perfect for normal to oily skin and it's especially for acne prone skin and I use this one as a spot treatment, like जहाँ भी मुझे active acne होता है, और sometime I use it as a फेस पैक, तो तब भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आप इसको वैसे ही हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ कर लेते हो तो आपको एक्नेस कम होने शुरू हो जाते हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट एंड वेरी इकोनॉमिकल। It was in my holy grail video, so you can tell how much I love. I have a backup of this one already in my desk. Okay, next empty is this face shop का क्या है ये जेजू एलो 99% सूदिंग फ्रेश सूदिंग जेल ना। जब मैंने इसका रिव्यू किया था तो मैंने आपको बताया था कि देखो कितनी बुरी तरह से पिचक गई है बेचारी, है ना, दिख रही है क्या ये? ओके, सो इसमें दे से 99% इनका एलो है। सो डेफिनेटली जो फर्स्ट 3 इंग्रेडिएंट इसके अंदर है दैट इज़ एलो
लीफ एक्सट्रैक्ट, देन ग्लिसरीन एंड उसके बाद अल्कोहल डीनेचर्ड है. सो एलोवेरा इज़ 99%. तो उसके बाद के जितने भी हैं आई थिंक कम से कम इसमें 15, 20, 25, 30 इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वो पॉइंट्स कॉन्सेंट्रेशन में होंगे. सो आई वोंट माइंड एंड दिस हैज़ वर्कड रियली वेल. मैंने इसको फेस पे नहीं यूज़ किया, मैंने इसको फेस शेविंग के लिए यूज़ किया था. दिस हैज़ वर्कड वेल एंड ये बॉडी शेविंग के लिए भी बहुत अच्छे से काम करती है एंड आई काइंडा लाइक इट. आई मे रीपरचेज दिस वन, बट अभी मेरे पास इनिसफ्री का एलो वाला पड़ा हुआ है, तो आई एम गोना फिनिश दैट एंड देन आई एम गोना रीपरचेज दिस वन. It's perfect for body and for the face shaving. And last but not the least, I think last product we have this body lotion. This is the daily moisturizing rose body lotion from Miniso. I have finished it off. I loved it. थोड़ा सा चीप सा रोज़ का फ्रेगरेंस इसमें से आता है, बट कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा लाइट है एंड इट हैज़ वेरी ऑयली फील. तो ये बहुत अच्छे से आपके बॉडी को मॉइस्चराइज करता है. आई मे रीपरचेज दिस वन बट नॉट दिस सेम वर्जन. आई मे ट्राई द डिफरेंट वन नेक्स्ट टाइम जब भी मैं मिनीसो जाऊँगी. बट येस, इट्स अ रियली गुड मॉइस्चराइजर फॉर ड्राई स्किन पीपल. सो इफ़ यू wanted to go for this one you can. आई डोंट नो ये मैंने दिखाई है या नहीं दिखाई है. दिस इज़ द रिक्वल की अल्ट्रा टच ड्राई टच सनस्क्रीन जेल. ये मैंने मेरे हस्बैंड को दे दी थी, उन्होंने इसको फिनिश किया है एंड मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी. एंड ये हमें मिल नहीं रही थी एक्चुअली, इसलिए मैं इसको किसी एमटी में आपको दिखा नहीं पाई हूँ, या आई थिंक मैंने दिखा दी होगी, तो आई एम रियली सॉरी. इट्स रियली गुड. आई लव्ड इट. आई एम डेफिनेटली गोना रीपरचेज दिस वन. इट्स परफेक्ट फॉर नॉर्मल टू ऑयली एंड इवन ड्राई स्किन. इट हैज़ दैट सिलिकॉन बेस अ क्रीमी टेक्सचर. बहुत ही स्मूथ सी बटरी सॉफ्ट सा कंसिस्टेंसी है इसका एंड इट्स परफेक्ट फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड बहुत अच्छे फिल्टर्स हैं एंड आई लव दिस वन. आई विल रीपरचेज दिस वन. सो या दैट्स ऑल फॉर नाउ. बहुत लंबा वीडियो मुझे लग रहा है हो गया, पर मैंने बहुत कोशिश की फटाफट बोलने की ताकि वीडियो लंबा ना बने. सो या दैट इज़ इट. दैट्स ऑल अबाउट इट. आई होप you found this video helpful. If you do, don't forget to give this one a big thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel and follow me on Instagram. I will see you in my next videos, guys. Until then, take care and stay beautiful. Bye bye.